Yes. So now, till now, what we have studied? We have studied that force on a charge is given by QVB sin theta. Force on a conductor is given by BIL sin theta. Now we are going to study that there are two conductors. ये conductor, it is carrying a current I1. This conductor, this is carrying a current I2. There could be two possibilities कि दोनों में same direction में current flow कर रहा है. I1, I2 are in the same direction. And there could be second condition that I1 is in this direction and I2 is in opposite direction. So I1, I2 could be in the same direction or I1 and I2 could be in the different direction. Right? ये दोनों possibility हम लेने वाले हैं. Right? So this is a conductor, a current carrying conductor. It will have its own magnetic field. Right? This is a current carrying conductor. It will have its own magnetic field. Now when we are keeping a second conductor near the first conductor, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में फोर्स कैसे लगेगा? Will they attract towards each other? Will they repel? Will they move away? That is what we are going to study here, right? So this is a straight conductor and we have discussed that magnetic field due to a straight conductor direct formula. As I told you, derivation is not in your syllabus. So magnetic field is of a straight conductor is kept given by mu naught I upon 2 pi r. That is a direct formula that we are going to use in the derivation. So इसका अपना कुछ magnetic field होगा. And because the current is flowing in upward direction, so magnetic field lines का direction क्या होगा? According to right hand thumb rule, magnetic field का direction होगा anti-clockwise. Right? Magnetic field का direction क्या होगा? Anti-clockwise. मतलब अगर हम ये ले कंडक्टर तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड कमिंग आउटवर्ड और यहां पे मूविंग इनवर्ड, राइट? ऐसे है, कमिंग टुवर्ड्स द रीडर, बेंडिंग एंड मूविंग इनसाइड. दैट इज हाउ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वुड बी देयर. अभी दिस हैज अ मैग्नेटिक फील्ड. नाउ व्हेन दिस सेकेंड कंडक्टर इज ब्रॉट नियर इट, it will experience a force because it is kept in the magnetic field. कोई भी कंडक्टर जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा होता है तो it experiences a force. What is the formula of that force? BIL sin theta. अभी पढ़ा है हमने. तो ये किसकी मैग्नेटिक फील्ड में रखा है? इस कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड में. और ये वाला कंडक्टर किसकी मैग्नेटिक फील्ड में रखा है? इसकी मैग्नेटिक फील्ड में. So due to which they will experience a mutual force. We are going to derive the expression of that force. इसका अपना कुछ मैग्नेटिक फील्ड है, करंट है, राइट? राइट? इसका अपना कुछ मैग्नेटिक फील्ड है बिकॉज इट इज कैरिंग अ करंट. नाउ व्हेन अ सेकंड कंडक्टर इज ब्रॉड, इसका अपना कुछ करंट है और एक मैग्नेटिक फील्ड है. ये वाला कंडक्टर इसकी मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो इट विल हैव अ फोर्स विच इज गिवन बाय BIL. बी किसका? इसका बी. करंट किसका? इस फर्स्ट कंडक्टर का करंट, फर्स्ट कंडक्टर का लेंथ, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड सेकंड का. इसी तरह से इस कंडक्टर का करंट, इस कंडक्टर का लेंथ, लेकिन ये किसकी मैग्नेटिक फील्ड में रखा है? फर्स्ट वाले की मैग्नेटिक फील्ड में रखा है. देयर कुड बी टू पॉसिबिलिटीज दैट दे मे अट्रैक्ट और दे मे रिपेल. What will happen when they will have current in the same direction and what will happen when they have current in the opposite direction? That is what we are going to study. And we know that कोई भी straight conductor अगर है and it is carrying some current, इसका अपना कुछ magnetic field होगा. उस magnetic field का direct value हम use करने वाले हैं mu naught I upon 2 pi r. Right? So let us consider two conductors. Let us name them PQ R S. PQ R S. Right? PQ. This is Q. So current flowing is I1 and I2. Let current flowing in PQ is I1 and RS is I2. Then magnetic field due to current I1 is, let us name magnetic field due to the first one is B1. B1 का वैल्यू क्या होगा? mu naught I1 upon 2 pi. कितना दूर हमने ये मैग्नेटिक फील्ड ले रहे हैं? हम इतना दूर ले रहे हैं. इस कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड के वजह से ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है. कितने डिस्टेंस पे? वो डिस्टेंस हमने क्या ले लिया? D ले लिया. R भी ले सकते हो आप. यू कैन टेक इट D और यू कैन टेक इट R. So यहाँ पे because I have taken the distance between these two as D, so I'll write down here as D. This is the value of
magnetic field due to current I1 in the first conductor, right? Now let us say ये वाले पॉइंट पे, right? At this point, what will be the value of magnetic field? That is what we will find, right? Applying Fleming's left hand rule. So the direction of current is upward. Yes, the direction of current, this gives the current, this gives the magnetic field, this gives the force. So इस पॉइंट पे देखो ये करंट है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन विल बी आउटवर्ड्स. व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस? इनवर्ड. तो इस पे कैसा फोर्स लगेगा? इनवर्ड फोर्स लगेगा, अंदर की तरफ फोर्स लगेगा. सो लेट अस राइट दैट दिस विल एक्सपीरियंस अ फोर्स. लेट अस नेम दिस एज F2. ये डायरेक्शन हो गया मैग्नेटिक फील्ड B1 का. ये मैंने दिखाया है ऐसे, बट एक्चुअली इट इज एक्टिंग एट 90 डिग्री. This is 90 degree perpendicular to the length, right? And current flowing is I2, right? Now, before we start the second one, opposite direction हम बाद में लेते हैं. What I have shown? I have shown the value of F2, that is the force experienced by second conductor because it is kept in the magnetic field of the first conductor, right? F2 is, हमें पता है F2 का वैल्यू क्या होगा? BIL sin 90 डिग्री. B किसका? फर्स्ट वाले कंडक्टर का B. सो B1. करंट किसका? सेकंड कंडक्टर का खुद का करंट I2. लेंथ किसका? दोनों का लेंथ ऑलमोस्ट हमने सेम लिया, तो इसको हम L ही रहने देंगे, राइट? तो F2 का वैल्यू क्या होगा? B1. B1 का वैल्यू हमें पता है म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई D इंटू I2 इंटू L. सो F2 का वैल्यू आ गया हमारा म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई D. और इसको या तो हम ऐसे लिख सकते हैं, F2 इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई. स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे. म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये 4 पाई हो गया. 2I1 I2 अपॉन D. अभी ये जो L है, L जो साथ में है, इसको हम इस तरह से लिख लेंगे F2 बाय L. फोर्स पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 अपॉन D. दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स पर यूनिट लेंथ, क्योंकि दोनों का लेंथ हमने सेम लिया है, राइट? एंड व्हाट विल बी द डायरेक्शन? डायरेक्शन विल बी टुवर्ड्स PQ, अंदर की तरफ, राइट? नाउ सिमिलरली अभी हम सेकेंड डायग्राम बनाते हैं. ये करंट I2 है, सेम ही डायग्राम हम बोलने वाले हैं. I1 है, इसका कुछ मैग्नेटिक फील्ड है एंड द फर्स्ट वन इज कैप्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड. तो यहां पे B1 की जगह क्या आ जाएगा? दिस इज F1, दिस इज B2 and this is the current I1. Similarly, F1 upon L comes out to be same expression ही रहने वाला है 2I1 I2 upon D. तो हम F1 F2 ना लिख के स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन लिखते हैं F by L म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 upon D. This is the common expression of force per unit length. अभी देखते हैं इसको. सेकेंड वाले में हमने क्या किया? We have taken the current flowing in this one. The direction of current is, ये देखो, the direction of current is same. Magnetic field lines are coming outward, मतलब 90 डिग्री पे. Apply Fleming's left hand rule again. So Fleming's left hand rule means current, magnetic field, force. करंट कहाँ है? अपवर्ड. मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? बाहर की तरफ. मतलब ये करंट हो गया, मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री आउटवर्ड. फोर्स एक्सपीरियंस विल बी इनवर्ड. मतलब ये फोर्स एक्सपीरियंस क्या? इनवर्ड है. इसका फोर्स एक्सपीरियंस इनवर्ड था, इसका फोर्स एक्सपीरियंस इनवर्ड है. तो क्या होगा? दोनों में अगर सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है तो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर.
बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज इनवर्ड फॉर दिस, इनवर्ड फॉर दिस. सो कोई भी दो कंडक्टर जिनमें सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, दे विल एक्सपीरियंस अ फोर्स. मैथमेटिकल एक्सप्रेशन F2/L कह लो या F1/L कह लो, जनरल एक्सप्रेशन हम लिख सकते हैं. फोर्स पर यूनिट लेंथ इज μ0/4 2I1I2/d, where d is the distance between both of them. ठीक है, तो इस फोर्स का यूनिट भी हम क्या लिखेंगे न्यूमेरिकल में, न्यूटन पर मीटर. अगर दोनों सेम डायरेक्शन में फोर्स हैं तो ये क्या करेंगे, दे विल एक्सपीरियंस अ इनवर्ड फोर्स, इनवर्ड फोर्स. तो देयर विल बी अ फिनोमिना ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन बोथ ऑफ देम. राइट, नाउ वी विल, मैथमेटिकल पार्ट यही रहने वाला है. भले ही आप पहले F2 निकालो या पहले आप F1 निकालो, मैथमेटिकल पार्ट इज गोइंग टू बी द सेम. नाउ वी विल डिस्कस कि अगर हम इसका डायरेक्शन चेंज कर दें तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगा. जैसे इसमें क्या आया, टुवर्ड्स PQ आया, ये वाला फोर्स क्या आएगा, टुवर्ड्स RS. मतलब दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर. नाउ विल ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द situation in which the current flowing in both of them is in opposite direction. देखो जरा, ये I1 लिया, ये I2 लिया. कोई भी एक डिस्कस करेंगे क्योंकि दूसरे के लिए भी उतना ही होगा. राइट, सो लेट अस से ये डायरेक्शन हो गया I2 एंड इट इज केप्ट इन द फर्स्ट का मैग्नेटिक फील्ड ले लेते हैं. राइट, सो विल टेक द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द फर्स्ट वन. इट इज केप्ट इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सेकेंड. ये डायरेक्शन ऑफ करंट है. यस, अगेन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल बी इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर. ये हमने B1 ले लिया फर्स्ट के लिए, इस पॉइंट पे द डिस्टेंस बिटवीन देम इज D. नाउ वी विल अप्लाई फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. करंट फ्लोइंग इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. ये करंट फ्लोइंग इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. मैग्नेटिक फील्ड इज इन 90 डिग्री टू द करंट. ये अगर करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे. फोर्स एक्सपीरियंस विल बी आउटवर्ड. जब हम अपवर्ड करंट ले रहे थे तो ये फोर्स अंदर की तरफ आ रहा था, लेकिन जब हमने करंट की डायरेक्शन चेंज की और मैग्नेटिक फील्ड तो 90 डिग्री पे है, तो ये फोर्स कैसी है, फोर्स इज आउटवर्ड. मतलब इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स F2 इन आउटवर्ड डायरेक्शन. सिमिलरली दिस विल, अगर हम इसकी मैग्नेटिक फील्ड बनाएं और इसको निकालें तो इसका फोर्स क्या आएगा, इसका फोर्स आएगा इस डायरेक्शन में. राइट, इट मीन्स वेन एवर करंट इज फ्लोइंग इन opposite direction, it will experience a force in outward direction, it will experience a force in outward direction. So they will repel each other. अगर current flowing same direction में है तो they will attract. If the current flowing is in opposite direction, they will repel. So this is how we find the force on two straight parallel conductors kept at a distance. Two straight parallel conductors carrying current kept at a distance D. Force per unit length is μ0/4 2I1I2/d.